आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉपीराइट पर है. नाउ आई एम स्टार्टिंग. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डायमंड एंड जेम्स एंड वी आर हैविंग वन of them here today. With this note, I would like to give my heartiest welcome to our today's speaker, Dr. Ankit Singh, Assistant Professor, Faculty of Law, Jagran Lake City, University, Bhopal. Welcome, sir. Heartily welcome. Thank you so much. On behalf, faculty of good afternoon, sir. I am Madhvi Patkar, Assistant Professor, Faculty of Law, Exchange. My warm welcome to all present here. On behalf of Faculty of Law, RNTU, I respectfully our Dean, Faculty of Law, Dr. Nilesh Sharma, and Ms. Nais Jamil, HOD, Faculty of Law. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, बट आज कुछ कॉन्सिडेंस ऐसा हुआ कि नीलेश सर को भी जाना पड़ा और सडनली कुछ डिपार्टमेंटल मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई. तो आज ना ही एचओडी है और ना ही डीन है, जो है हम ही आज. तो आपको हमारे साथ ही कंटिन्यू करना पड़ेगा. ठीक है, कोई इशू नहीं है सर. आज का तो उस हमारे एचओडी डॉक्टर नीलेश शर्मा एंड हमारी एचओडी मिस नाइस जमीर और डॉक्टर नीलेश शर्मा सर की तरफ से मैं आपका हार्टली वेलकम करती हूँ. टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं सर की एकेडमिक प्रोफाइल के बारे में कुछ सभी को बताना चाहूँगी. अबाउट अंकित सर. Today's speaker Ankit sir is a young UGC NET JRF qualified academician with an extensive teaching and research experience of 6 years, wherein he has taught a wide range of subjects to both undergraduate and postgraduate students. He has a master degree in intellectual property and business law from National Law Institute University, Bhopal, and PhD in the domain of patent law from Jagran Lake City University. He has more than 20 research publications to his credit on varying domain of law in the form of book, chapters, articles, and research paper. He has presented his research paper in various national and international conferences. His research areas primarily include intellectual property law, business law, international law, and environmental law. He has guided about a dozen UG and PG students in their dissertation work. Dr. Ankit Singh has also had a diverse experience in academic administration. He has acted as convener and co-convener of various national and international events such as moot court competition, seminars, workshops, etc. Currently, Dr. Singh is heading to institutional research centers with JLU Soul Center for Competition and Investment Law and Policy and JLU Taxman Center for Excellence in Taxation Law. He is in the JLU SOS Board of Study and also a member of the Moot Court Committee. सर आपकी प्रोफाइल अब मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है कुछ कहने के लिए. ठीक है सर. आई एम हम लोग अपने आप में बहुत ग्लैड फील कर रहे हैं कि आप हमारे साथ हैं. प्लीज़ सर अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं. मैं सबकी तरफ से, मेरे हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, डीन एचओडी की तरफ से, आरएनटीयू फैमिली, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका हार्टली वेलकम करती हूँ. प्लीज़ सर. Thank you so much, ma'am. Thank you for that gracious introduction. Or I would like to thank the entire management of RGTU, Nilesh sir especially, for giving me this opportunity to interact with the students on this topic. So, ज़्यादातर पोस्ट लंच सेशन हमेशा ऐसे होते हैं कि लोग थोड़े से लेजी फील करते हैं या थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा casual सा हो जाता है. But the thing is that it's all about once you are free, you are able to learn and absorb things. So I would like to make this session, I would try to make this session interesting and exciting
because the topic itself is something that will grab or catch the minds of the young people. So we will start. Before that, I would like to just request if my slide is visible to all right now. Yes, no, sir. Be not visible. Yes, sir. Visible. Visible. Ma'am, my slide is visible to all, right? Yes, yes, sir. Yes, sir. Just a second. Yes, sir. Visible. All right. So our topic for today that has been assigned to me is basics of Indian copyright law. Yes. So I would like to cover on the बेसिक एस्पेक्ट्स द स्कीम जो कॉपीराइट एक्ट की इंडिया में है और उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बात करेंगे और उसके बाद वेरियस अदर एस्पेक्ट्स जो कि कॉपीराइट एक्ट जिसके बारे में बात करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड start with the simple statement that anything worth copying is worth protecting. And आप लोगों ने सब लोगों ने आई एम श्योर दैट द वर्ड कॉपीराइट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट एंड यू मस्ट नो अबाउट व्हाट exactly is copyright. And even if you do not know what exactly is copyright, if you cannot define it in those many words, but you know that you have a general idea कि copyright क्या होता है और किस चीज से relate होता है. तो it's a kind of an intellectual property right, just like trademarks are there. इंडिया की एक intellectual property right पूरी regime है जिसमें trademark, copyright, patent, geographical indication, every other thing comes. There are legislations to regulate all these aspects. So today our subject of our discussion will be basics of Indian copyright law. And मैम ने जितना टाइम मुझे अलॉट किया है मैं कोशिश करूंगा कि उस टाइम में आई वुड लाइक टू come up with something which you understand, which you can remember, which you can learn from. So if anything is worth copying, अगर आप किसी चीज को कॉपी कर सकते हैं तो उसको प्रोटेक्शन मिलना भी जरूरी है. ये एक कॉपीराइट का बेसिक और अंडरलाइंग मैसेज है दैट एनीथिंग वर्थ कॉपिंग इज वर्थ प्रोटेक्टिंग. मूविंग टुवर्ड्स द history, there was a convention which was called Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work. That was one of the first international documents which inspired the new wave of copyright in the world. Although India had, during the time of British India, East India Company, an act already was there in 1847, but afterwards several other steps were taken to modify the copyright laws, the copyright regime, which was done through the Berne Convention. And afterwards, one other act came, which was called the Copyright Act of 1914, which was the modern copyright law of India. And it was largely and hugely based on the English law of 1911. So this was the pre-independence period. तो ऐसा नहीं था कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के पहले कॉपीराइट का कोई सीन ही नहीं था या कॉपीराइट को लेकर कोई बात ही नहीं होती थी. इंडिया में दो लॉज थे, दो इंग्लिश पीपल हैव गिवन अस दीज लॉज. हमारे पूरे ही लीगल सिस्टम पर अंग्रेजों का काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहा है, ये तो हम सबको पता ही है. तो यहाँ तक कि क्रिमिनल लॉ आज भी हम आईपीसी ही फॉलो करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी उन्हीं का बनाया हुआ है, आईपीसी उन्हीं के बनाए हुए फॉलो कर रहे हैं हम. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के डोमेन में भी उनके लॉज बनाए हुए हमने फॉलो किए हैं. और afterwards, when we got our independence, then we came up with our act, which is up till now it's continuing, which is the Copyright Act of 1957, which we basically study when we study the Indian copyright law. So the scheme that we are going to discuss is the scheme under 1957. Though the inspiration is coming from the Berne Convention and the Act of 1914 and the Act of 1847, but the act which exists in the current form is the Copyright Act of 1957, which has been amended numerous times, as you can see in 83, 84, 92, and afterwards when India signed the TRIPS agreement. So it's the international obligation, but that when you ratify an agreement, जब आप किसी international agreement को sign करते हो, तो ये आपकी एक तरीके से obligation बन जाती है कि आपने जो agreement sign किया है, वो आप अपने law में उसको incorporate करें. तो उस agreement के हिसाब से we again brought some changes in our Copyright Act in 94, 99, 2012. नाउ ये चेंजेस एग्जैक्टली क्या थे वो आपको डिफरेंट सेक्शंस के डिफरेंट पार्ट्स में देखने को मिलेगा. परफॉर्मेंस राइट्स ऐड हुए, कुछ और चीजें ऐड हुई, टर्म पहले 50 साल प्रोटेक्शन के लिए 60 साल, तो वो आपको देखने को मिलेगा वंस यू एक्चुअली स्टडी कॉपीराइट. बट मैं यहाँ पर
बेसिक चीजों की बात करूंगा जिससे आपको एटलीस्ट आज ये क्लियर हो जाए कि कॉपीराइट से रिलेटेड बेसिक चीजें क्या हैं, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो सो व्हेन यू एक्चुअली रीड कॉपीराइट एक्ट, तो आपको सारी चीजें क्लियर रहें। तो जब आप केस लॉ पढ़ें या जब आप वेरियस इश्यूज पढ़ें या जब आप आज की डेट में अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि किसी ने किसी का गाना चुरा लिया है, किसी ने किसी की पेंटिंग चुरा लिया है, कुछ ऐसा हो गया, तो आपको समझ में आए कि हाँ क्या हो रहा है, जजमेंट कैसा आ रहा है, जज क्या सुन रहा है, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन। सो वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस इज कॉपीराइट में प्रोटेक्टेड क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज है प्रोटेक्टेड कॉपीराइट। सेक्शन 13 बात करता है that these are certain works that are protected under the copyright act। आप देख रहे होंगे कि मैंने 4 जगह ओरिजिनल वर्ड को बोल्ड किया हुआ है। इसका मतलब ओरिजिनल एक की वर्ड है जिसके बारे में हम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर ये ओरिजिनल होता क्या। सी, ओरिजिनल वर्ड ओरिजिन से बना हुआ है, दैट मीन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम समवेयर, कहीं से किसी चीज का स्टार्ट होना, किसी चीज की शुरुआत होना, वो उसका ओरिजिन होता है। जैसे कि गंगा का ओरिजिन हिमालय, तो ओरिजिन इज सम वर्क दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम यू। आप कहीं और से नहीं ला रहे हो। अगर आप कोई पोएट्री लिख रहे हो, कोई नॉवेल लिख रहे हो, तो आप कहीं और से नहीं ला रहे हो। द वर्क इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम यू, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ऑथर, एंड दैट इज वाई कॉपीराइट हमेशा ओरिजिनल वर्क को प्रोटेक्ट करता है, किसी भी कॉपीड वर्क को प्रोटेक्ट नहीं करता। और ये जो आपके सामने दिख रहे हैं वो है काइंड्स ऑफ वर्क दैट आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कॉपीराइट एक्ट। लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क। ब्रैकेट में मैंने सबके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा आप लोग के लिए कि आखिर लिटरेरी वर्क में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, क्या क्या ड्रामेटिक वर्क होते हैं। तो आप अपने इंटरटेनमेंट के लिए जितनी भी चीजें देखते हैं, वट एवर यू सी, वट एवर यू बाय, आप बुक्स खरीदते हैं, आप मूवीज देखते हैं, आप सॉन्ग सुनते हैं, all these things are eligible for protection under the Copyright Act। सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स, मूवी जो आप देखते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग जो आप कैसेट्स और सीडीज खरीदते हैं। सी, म्यूजिकल वर्क इज अ डिफरेंट थिंग। अब आप पूछेंगे सर म्यूजिकल वर्क और साउंड रिकॉर्डिंग में क्या फर्क है। म्यूजिकल वर्क किसी का म्यूजिक हो सकता है, आपने देखा होगा लोग साउंड जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं उनको सामने रखकर पियानो बजाते हैं, वो नोट्स पढ़कर पियानो बजाते हैं, राइट? आप लोगों को सुना देखा होगा, वो म्यूजिकल वर्क है। साउंड रिकॉर्डिंग इज अ डिफरेंट थिंग। साउंड रिकॉर्डिंग मींस स्टूडियो में जाकर उसी म्यूजिक को रिकॉर्ड करके एक मीडियम में स्टोर कर लेना, वो एक साउंड रिकॉर्डिंग होती है। वो लोग स्टूडियोज करवाते हैं, जैसे टिप्स हो गया, टी सीरीज हो गया, ये सब लोग। और आर्किटेक्चरल वर्क, फोटोग्राफी भी आता है, फोटोग्राफी आर्टिस्टिक वर्क में आ जाता है, ठीक है। सो ये सारे वर्क्स हैं, मोटा मोटा आपको बता दिया कि ये जो वर्क्स हैं वो कॉपीराइट में प्रोटेक्टेड है। आर्किटेक्चरल वर्क में आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब आप अपना घर का नक्शा बनवाने जाते हैं, किसी आर्किटेक्ट को पैसा देके जब अपने घर का नक्शा बनवाते हैं, तो वो जो आपका नक्शा बनाता है वो उसका कॉपीराइट है। ऑलराइट, कोई आर्किटेक्ट कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स डिजाइन करता है, जैसे मान लो बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग्स है, जैसे अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है या अपनी एपेक्स बैंक की बिल्डिंग है, ये सब आर्किटेक्ट डिजाइन करते हैं। तो उसके ढांचे पर, उसका जो कागज पे जो उसका आर्किटेक्चरल प्लान है वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेबल। बिल्डिंग कॉपीराइट प्रोटेक्टेबल नहीं, बट आर्किटेक्चरल जो प्लान है वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, किस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन होने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये जरूरी है कि वो आर्किटेक्चरल प्लान कोई और कॉपी ना करे। इसलिए ये आपको जानना जरूरी है कि दो बिल्डिंग एक जैसी बन जाएंगी तो इसका मतलब ये है किसी आर्किटेक्ट ने किसी का आइडिया चुरा लिया है या किसी की ड्राइंग्स चुरा ली है। तो वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं कॉपीराइट में। तो ये कुछ वर्क्स हैं, दोज आर प्रोटेक्टेड अंडर द regime or under the ambit of copyright act। माधवी मैम, आई वुड लाइक टू मेंशन एट दिस पॉइंट कि अगर कोई भी डाउट्स हैं तो इंसान तुरंत भी पूछ सकता है और वी कैन सेव देम फ्रॉम लेटर एज वेल, दे कैन नोट देयर डाउट्स। तो इट्स कंप्लीटली अ टू वे सेशन, ये कोई मोनोलॉग नहीं है, ये कोई लेक्चर डिलीवर नहीं हो रहा है, ये एक सेशन है जिसमें आपको कुछ चीजें एब्जॉर्ब करनी है। इज अ डिस्कशन, इज आप कोई भी चीज आप कभी Yes. भी, मैं ऑल पार्टिसिपेंट्स, मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि अगर सर जो भी चीज हमें बता रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ऐसा नहीं है कि आप सेशन एंड में ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अभी भी क्वेश्चन अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं सर को पास कर दूंगी वो क्वेश्चन, ठीक है।
जी सर, कंटिन्यू कीजिए। ओके, जी। सो आर्किटेक्चरल वर्क में आर्किटेक्चरल प्लान इज प्रोटेक्टेड, और जब बिल्डिंग बन के खड़ी हो जाती है तो ऑब्वियसली उस बिल्डिंग में आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट का एक अपना एक राइट रहता है कि वो बिल्डिंग उसी के आर्किटेक्चरल प्लान का एक कन्वर्जन है इनटू रियलिटी। तो वो उस पर अपना राइट क्लेम कर सकता है कि यार ये मेरे एक मॉरल राइट का पार्ट है, इस बिल्डिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे या ऐसा। तो ये जूरिस्प्रूडेंस आपको समझना जरूरी है, अदरवाइज मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन या प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके सारे प्रोटेक्टेड हो गए। अब ऑथर कौन होता है? ऑथर होता है वो इंसान जो कॉपीराइट का पहला ओनर होता है। उस ओनर सेकंड थर्ड फोर्थ हो सकते हैं। जैसे मान लो आज मैंने कोई नॉवल लिखी या कोई कविता लिखी, उसके बाद मैंने माधवी मैम को बोल दिया कि माधवी मैम ये कविता मैंने लिख दी है, अब आप, मैं बोल रहा हूँ कि आप ही इसको ले लीजिए और आप ही इसकी कॉपीज बना के आप लोगों में बेच सकते हैं। कविता कविता मैंने लिखी थी, आई एम द फर्स्ट ओनर। ऑथर, मैं ऑथर हूं, मैं हमेशा फर्स्ट ओनर रहूंगा, उसका पहला ओनरशिप का राइट हमेशा मेरा होगा। उसके बाद आई कैन गिव इट टू समवन एल्स। सो ऑथर इज द पर्सन जो वर्क को इस दुनिया में लेके आता है, उस पर उसका पहला अधिकार होता है। सो द ऑथर ऑफ अ वर्क इज द फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट। आफ्टरवर्ड्स हम मैं बेच सकता हूं, कॉपी कर सकता हूं, वो बात की बात। तो इसमें कौन वर्क और कौन ऑथर रहता है? लिटरेरी वर्क में उसका ऑथर रहता है, जैसे नॉवल हो गया लिटरेरी वर्क या कुछ और हो गया, तो उसका ऑथर जो है वो उसका फर्स्ट ओनर रहेगा। आर्टिस्टिक वर्क में आर्टिस्ट है जो पेंटिंग बनाता है, जैसे कोई पेंटिंग है, जैसे मान लो मोनालिसा की पेंटिंग बनी हुई है, तो मोनालिसा की पेंटिंग में कौन ने बनाई? अगर डाविंची ने बनाई है तो डाविंची इज द फर्स्ट ओनर। म्यूजिकल वर्क में जो कंपोजर है उसका, अगर कोई सॉन्ग कंपोज किया हिमेश रेशमिया ने, तो हिमेश रेशमिया इज द फर्स्ट ओनर ऑफ दैट सॉन्ग, उस म्यूजिक का, एंड देन आफ्टरवर्ड्स ही कैन सेल और असाइन टू एनीवन एल्स। फोटोग्राफ, अगर कोई है फोटोग्राफ है तो कौन फर्स्ट ओनर है? द पर्सन हु क्लिक्स दैट फोटोग्राफ। सिनेमेटोग्राफ फिल्म कौन है? प्रोड्यूसर। साउंड रिकॉर्डिंग प्रोड्यूसर। आर्किटेक्चरल वर्क आर्किटेक्ट। अच्छा, सिनेमेटोग्राफ फिल्म का प्रोड्यूसर कौन होता है? आप लोगों को पता होगा, ये आपने देखा होगा, बहुत सारे अवार्ड शोज देखते होंगे, भले ही आप इंडियन अवार्ड शोज देखते हो या ऑस्कर या बाफ्टा या गोल्डन ग्लोब्स। जब बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिलता है भाई, बेस्ट एक्टर का अवार्ड एक्टर लेने जाता है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड डायरेक्टर लेने जाता है, लेकिन जब बेस्ट पिक्चर का अवार्ड अनाउंस होता है तो उसको लेने कौन जाता है? उसको लेने जाता है उस फिल्म का प्रोड्यूसर। बिकॉज उस फिल्म का पहला कॉपीराइट प्रोड्यूसर के पास है, बिकॉज ही इज द वन which has who has given the money to produce that film। जितने भी एलिमेंट्स उसमें लगे हुए हैं वो सब मिला के एक सिनेमेटोग्राफ फिल्म बनती है, और उसको बनाने का पैसा, प्रोड्यूस करने का पैसा प्रोड्यूसर देता है। एंड दैट इज व्हाई इन लॉ, इन कॉपीराइट ज्यूरिस्प्रूडेंस, सिनेमेटोग्राफ फिल्म का जो कॉपीराइट है वो प्रोड्यूसर के पास होता है फर्स्ट। आफ्टरवर्ड्स ही डिस्ट्रीब्यूट्स, उसके बाद टॉकीज वाले उसके राइट्स खरीदते हैं, फिर टॉकीज में डिस्ट्रीब्यूटर्स टॉकीज वालों को बेचते हैं, फिर टॉकीज वाले उसको लगाते हैं, वो एक अलग चीज। बट फर्स्ट ओनर ऑफ अ फिल्म, आज मैंने कोई फिल्म बना दी आधे घंटे की, प्रोड्यूस कर दी मैंने फिल्म, उसमें एक्टर कौन है? ठीक है। डायरेक्टर कौन है? ठीक है। सब ठीक है, स्टोरी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर सब ठीक है, लेकिन जो फिल्म पूरी बनकर तैयार हुई उसमें पैसा मेरा लगा हुआ है, प्रोड्यूसर के पास कॉपीराइट होगा उसका, मैंने सबके कॉपीराइट लिए हुए। तो ये चीजें आपको अभी समझ में आएंगी धीरे धीरे, अपन बात करेंगे उसकी। तो दो चीजें हो गई। फर्स्ट वी हैव डिस्कस कि भाई किस कॉपीराइट किस किस वर्क में प्रोटेक्ट, कौन कौन से वर्क्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द कॉपीराइट एक्ट, एंड हु आर द ऑथर। ऑथर इज द फर्स्ट ओनर, एंड आफ्टरवर्ड्स ओनरशिप कैन चेंज एज पर द विश ऑफ द ऑथर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझनी चाहिए, थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगी आप लोगों को। आइडिया और एक्सप्रेशन। माधवी मैम का फोन आने वाला था, उसके पहले मेरे पास आइडियाज थे कि मैं इस तरीके से अपने लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा या इस लेक्चर को कैरी आउट करूंगा, बट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एक्सप्रेसिंग। ये मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, ये मेरी परफॉर्मेंस डिलीवर हो रही है। ये जो मैं पूरा लेक्चर रिकॉर्ड होगा ना, जो ये माध्यम जो रिकॉर्ड कर रही है, ये रिकॉर्डिंग पूरा मेरा कॉपीराइट होगा, बिकॉज मैं एक परफॉर्मर हूं, आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर, और वो आपको भी पता चलेगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं दैट आइडिया पर कॉपीराइट नहीं होता। आइडिया बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना? तो अगर आपने आइडिया पर कॉपीराइट ले लिया तो फिर कोई दूसरा इंसान कुछ कर ही नहीं पाएगा। जैसे मान लो मैंने अगर मुझे एक रोमांटिक नॉवल लिखनी है जिसमें एक गरीब लड़के और एक अमीर लड़की की प्रेम कहानी मुझे बतानी है, ये एक आइडिया होगा। अगर इस पे कोई कॉपीराइट ले लेगा तो बाद में कोई इंसान इस चीज पर कहानी लिख ही नहीं पाएगा, वो अपने आप से किसी इस कहानी। तो द थिंग इज दैट इट्स नॉट द आइडिया दैट इज कॉपीराइटेबल, इट्स द एक्सप्रेशन ऑफ दैट आइडिया विच इज कॉपीराइटेबल। ऑलराइट, so you can see that original expression of even an unoriginal idea is eligible for protection। बहुत सारे डायरेक्टर्स ने, बहुत सारे लोगों ने मूवीज बनाई हैं, वॉर टाइम मूवीज बनाई हैं,
ठीक है ना, इंटरफेथ मैरिजेस पर मूवी बनाई है, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर मूवी बनाई है, बट द थिंग इज दैट उनके आइडियाज सेम थे। क्रिकेट की पृष्ठभूमि पर लोगों ने पिक्चरें बनाई, बट आइडिया सेम थे, बट एक्सप्रेशन डिफरेंट था। किसी ने कुछ और बनाई क्रिकेट को लेकर, किसी ने लगान बनाई, किसी थीम वही थी बट एक्सप्रेशन डिफरेंट था। सो आइडियाज पर कॉपीराइट नहीं होता, ठीक है ना। न्यूज जैसे न्यूज है, न्यूज पर किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता भाई। अगर मोदी जी कहीं गए हैं टूर पे तो वो एक फैक्ट है, फैक्ट्स पर कॉपीराइट किसी का नहीं हो सकता है। एक इंसान ने न्यूज में दिखा दिया कि मोदी जी गए, तो क्या बाकी वाले न्यूज चैनल नहीं दिखा सकते? क्या सब दिखा सकते हैं? बट द थिंग इज दैट इट्स एन आइडिया कि मोदी जी की ट्रिप को कवर करना है, बट यू कैन हैव ओरिजिनल एक्सप्रेशन ऑफ दैट। आप किसी और डायमेंशन को लेकर कवर करोगे या कोई और डायमेंशन दिखाओगे। सो इफ यू वांट टू क्लेम प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट एक्ट, यू हैव टू प्रूव दैट योर ओरिजिनल, दैट योर एक्सप्रेशन इज ओरिजिनल। योर आइडिया मे नॉट बी ओरिजिनल बट योर एक्सप्रेशन इज ओरिजिनल, राइट। अब आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे आइडिया ऑफ मेकिंग अ शो अबाउट ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, आइडिया ऑफ राइटिंग अ पोएम ऑन कॉलेज लाइफ, आइडिया ऑफ राइटिंग अ स्टोरी अबाउट योर चाइल्डहुड ड्रीम्स। ये सब प्रोटेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये सब आइडियाज है। भाई आपके ऊपर, आपको एक आइडिया आया कि आपको मध्य प्रदेश की ट्राइब्स की स्टोरी को कवर करना, ये कॉपीराइटेबल नहीं है। अगर किसी और ने कवर कर लिया तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार तूने मेरा आइडिया चुरा लिया, ये मेरा है। नो, उसने कवर करके एक्सप्रेस कर दिया, right? So if someone else writes a book about your childhood using different names or even their childhood after they got the idea from you, they will get protection because they express the idea. तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार तूने मेरा आइडिया चुरा लिया, आइडिया चुरा लिया। आइडिया पर कॉपीराइट नहीं हो सकता, ठीक है ना। How a person expresses it, how they treat the film, how they treat the characters, develop the characters, how they shape the story, that is the originality that is protectable. Idea itself is not protectable. All right, ये एक और चीज होगी। नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़े। नेक्स्ट इज कॉपीराइट अगर है तो क्या है? व्हाट इज दिस कॉपीराइट? कॉपीराइट अगर आप, भाई आप कह रहे हो कि कॉपीराइट है मेरे पास, तो कॉपीराइट के अंदर आप क्या क्या चीजें कर सकते हो? व्हाट विल यू से कि भाई मेरे पास इस वर्क का कॉपीराइट है, तो कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट एक चीज तो होगी, चलो कॉपी करने का राइट, कॉपी राइट, राइट टू कॉपी। इज दैट द ओनली राइट? नो, इट्स नॉट द ओनली राइट। कॉपीराइट इटसेल्फ इज अ एक्सक्लूसिव बंडल ऑफ राइट्स। आपको एक एक गुच्छा मिलता है राइट्स का। अगर आपके पास कॉपीराइट है किसी वर्क का, अगर आपने कोई पेंटिंग बनाई है, अगर आपने कोई मूवी बनाई है, अगर आपने कोई नॉवेल लिखी है, कोई पोएट्री लिखी है, तो आपको अगर उस, इफ यू हैव द कॉपीराइट ऑफ दैट, यू हैव द राइट टू डू ऑल दीज थिंग्स। क्या कर सकते हो आप उस वर्क को रिप्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब उसकी कॉपीज बना सकते हो। और आज के जमाने में आप लोग उसको सीडी में, डीवीडी में रख सकते हो, ठीक है ना। आप उसकी कॉपीज पब्लिक में इशू कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप उसकी और दूसरी कॉपीज पब्लिक में इशू कर सकते हो, एक्सेप्ट दोज जो ऑलरेडी इशू हो चुकी है। जैसे इसे कहते हैं फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन। फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन नीचे लिखी हुई है स्टार बना के, दैट वंस अ सेल ऑफ अ कॉपीराइटेड वर्क हैज बीन मेड लीगली and the purchaser has legitimately acquired the copy, the owner of the copyright does not have the right to bar further sales and he loses his copyright in that particular copy. That means अगर मैंने 50 नॉवेल्स बना के किसी पब्लिकेशन हाउस को दे दिया, या एक नॉवल बना के दे दिया, पब्लिकेशन हाउस ने उसकी एक कॉपी बेच दी, तो उस माधवी मैम को चलो कॉपी बिक गई। अगर वो लेजिटिमेटली वो कॉपी अगर बिक चुकी है माधवी मैम को, तो उस कॉपी पर मेरा कोई अधिकार नहीं रह गया, वो लेजिटिमेटली उसका ट्रांसफर हो चुका है कॉपी, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन होती है। दैट इज वाई जो कॉपीज ऑलरेडी पब्लिक में सर्कुलेट हो चुकी हैं उस पर मेरा कोई राइट नहीं है, हाँ, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन ये है कि लेजिटिमेटली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने चोरी कर ली, लेजिटिमेटली पैसा देकर अगर आपने किसी की सीडी खरीदी है, तो वो सीडी पर ओरिजिनल ओनर कोई आपको कुछ नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता कि आप उसको, मैं बना के बेच सकता हूं फिर उसको, भाई मैंने पैसा देके खरीद लिया ना उसको। तो लेजिटिमेटली अगर किसी ने पहली कॉपी सेल खरीद ली है तो उस पर कॉपीराइट नहीं होता है। जो कॉपीज अब तक नहीं है, जो अब तक शेल्फ में पड़ी हुई है ओनर के, वो उसको आप पब्लिक में ले जा सकते हो। जो ऑलरेडी बिक चुकी है वो तो चली, ठीक है ना। उसके बाद और कौन सा राइट है आपके पास? इफ यू हैव अ कॉपीराइट यू कैन आल्सो परफॉर्म द वर्क इन पब्लिक। जैसे आपकी कोई खुद की कविता है, जैसे कुमार विश्वास बड़ा कवि है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, तो उसने कविता लिख दी, अब उसी के पास राइट है कि वो कविता को कम्युनिकेट कर सके पब्लिक में, तो वो खुद भी खड़े होकर पब्लिक में सुना सकता है, या किसी और को परमिशन दे सकता है कि आप सुना सकते हो, लेकिन उसकी परमिशन के बिना मेरा आप उसकी कविता पब्लिक में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद
उसी पर कोई, अगर आपको मान लो कोई नॉवेल है, उस पर आपको कोई मूवी बनानी है, ठीक है ना, जैसे आप चेतन भगत की नॉवेल्स पे काफी मूवी बनी है, अभी व्हाइट टाइगर बनी थी अरविंद अडिगा की, जिसमें उसको बेस्ट मैन बुकर का प्राइज मिला था, उस पर एक व्हाइट टाइगर बनी है, उस पर जो अपना एक्टर है उसको बाफ्टा का नॉमिनेशन मिला है, तो उसकी परमिशन भी आपको उसके ओनर से, ऑथर से लेनी पड़ेगी। भाई मैं आपकी नॉवल पे मूवी बनाना चाहता हूँ, एडाप्टेशन करना चाहता हूँ, ट्रांसलेशन करना चाहता हूँ, ये सारी चीजें करने का अधिकार, ये जो लिस्ट आपके सामने है, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऑथर के पास ही होता है। जब तक ऑथर किसी और को ये अधिकार नहीं दे देता, तब तक कोई और उसकी परमिशन के बिना ये चीजें नहीं कर सकता। अगर मेरी कोई नॉवेल है जो अंग्रेजी में मैंने लिखी है, अगर माधवी मैम उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना चाहती हैं, तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी मुझसे, मेरी परमिशन के बिना वो मेरे नॉवेल का हिंदी ट्रांसलेशन अगर कर भी दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बेच नहीं सकती, नहीं तो मैं उन पर केस लगा दूं। ऑलराइट, तो ये एक बंडल ऑफ राइट्स है जो एक इंसान को मिलता है अंडर कॉपीराइट। अनदर थिंग, नेक्स्ट थिंग इज रजिस्ट्रेशन। अच्छा, रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है नहीं है, कंपलसरी नहीं है। सबसे पहले तो बात यह है कि कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए। आपकी कविता नॉवेल का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। बर्न कन्वेंशन के अंडर पूरी दुनिया में ये चीज रिकॉग्नाइज्ड है कि आपका प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक होगा। अगर आज की डेट में, जैसे ये मैं अभी लेक्चर ले रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग हो गई, इसमें मेरा ऑटोमेटिक कॉपीराइट है, ऑटोमेटिक, ठीक है, इसमें मुझे रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं। बट रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों जरूरी होता है या क्यों बोला जाता है कि करवाना चाहिए? बिकॉज जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इट्स द प्राइमा फेसाई प्रूफ ऑफ ओनरशिप, कि साहब मुझे सरकार ने ये ओनरशिप का प्रूफ दिया है, मतलब मेरा वर्क ओरिजिनल था, मैंने किसी का चुराया नहीं है, वो मेरा प्रूफ होता है। लेकिन अगर मैं बिना रजिस्ट्रेशन के भी प्रूफ कर ले जाऊं दैट दिस वाज माय ओरिजिनल वर्क, मेरे पास विटनेसेस हैं, माधवी में मेरे पास सारे 18-20 लोग मेरे को देख रहे हैं, वो लोग बोल सकते हैं कि साहब हाँ इन्होंने करा था, इनका ओरिजिनल वर्क। तो इफ आई कैन इजिली प्रूव इट, आई डू नॉट नीड रजिस्ट्रेशन। बट रजिस्ट्रेशन क्यों, कब जरूरी होता है? जब आपके पास मीन्स नहीं होते हैं प्रूव करने के। जब आप प्रूव नहीं कर पाओगे तो आप प्रोटेक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे। दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। चैप्टर 10 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस लिखी हुई है। अच्छा, जितने यहाँ पर आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, जितने भी फोटोग्राफर्स हैं, मेरे ख्याल से कुछ लोग तो इंस्टाग्राम और सब इन्फ्लुएंसर्स होंगे, फोटोग्राफी करते होंगे, पेंटिंग करते होंगे, पोएम्स लिखते होंगे। आप लोग जो लास्ट पॉइंट है ये जरूर कीजिए, आप कॉपीराइट लिखिए, कॉपीराइट का सिंबल बनाइए, जिस ईयर में आपने वो वर्क लिखा है या करा है वो ईयर लिखिए और अपना नाम लिखिए, या आप जिस भी कंपनी या किसी भी फर्म के अंडर काम कर रहे हैं उसका नाम लिखिए। वो अगर आप लिख देंगे और फिर अगर आप पब्लिश करेंगे डोमेन में, मार्केट में, तो वो माना जाएगा कि आपका कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, वो उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। और अगर ऐसा हुआ तो आप केस लगा सकते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो द अंडरलाइंग मैसेज इज दैट the underpinning here is that registration of a copyright is not compulsory. It is just important because it becomes easier to prove that your work is original. कोई और इंसान मान लो कॉपी कर लिया और आपको बोला कि प्रूव करके बताओ, अच्छा आपने रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं और आप प्रूव कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके पास विटनेस नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है। तो द थिंग इज दैट रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी बट इट इज रिकमेंडेड। ऑलराइट, तो ये चीजें रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है मॉरल राइट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, अभी इसके पहले जो मैं अपन ने करा था कम्युनिकेशन टू द पब्लिक और ब्रॉड, ये सब चीजें जो अपन ने अभी पढ़ी थी कि व्हाट आर द एक्सक्लूसिव राइट्स, वो एक्सक्लूसिव राइट्स इकोनॉमिक राइट्स कहलाते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होते हैं। उसके अलावा ऑथर के मॉरल राइट्स भी होते हैं, नैतिक अधिकार होते हैं, जो सेक्शन 57 में लिखे हुए हैं उन ऑथर की रेप्यूटेशन के लिए। सो two kinds of right is provided under section 57। एक है पैटर्निटी राइट, पैतृक अधिकार, पैटर्निटी राइट, और राइट ऑफ इंटेग्रिटी। पैटर्निटी राइट क्या होता है? यू हैव द राइट टू क्लेम टू बी द ऑथर ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क। अगर मैंने कोई पेंटिंग बनाई है और माधवी मैम ने उस पेंटिंग को अपने ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में टांगा हुआ है खरीद के मार्केट से, तो ठीक है, वो उन्हीं की पेंटिंग है, मेरी नहीं हुई, वो उन्होंने पैसा देके खरीदी है भाई, उन्हीं की पेंटिंग है। लेकिन मेरा ये राइट कोई मुझसे नहीं छीन सकता कि मैं माधवी मैम के घर जाऊं और बोलूं कि मैम ये पेंटिंग मैंने बनाई है, ये मेरी पेंटिंग, ये मैं लिख सकता हूं क्योंकि मैं उसका ऑथर हूं। ओनरशिप तो मैं क्लेम नहीं कर सकता,
माधवी मैम, ओनरशिप तो मैं क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि आपने खरीद ली ना पेंटिंग को, लेकिन ऑथरशिप तक क्लेम कर सकता हूं मैं कि मैंने बनाई है, मैं इसका ऑथर हूं। तो ये एक मेरा नैतिक अधिकार है कि मैम ये पेंटिंग मैंने बनाई हुई है। ओनर वो आप हो, आपने पैसा देके खरीद लिए, ओनर आप ही हो भाई, लेकिन ऑथर मैं हूं इसका। ये मेरा पैटर्निटी राइट है, आप मुझे मना नहीं कर सकते। यू कांट डिनाई मी दिस राइट। ऑलराइट, द सेकंड थिंग इज राइट ऑफ इंटेग्रिटी। दैट मींस if my work is distorted or mutilated or modified in a way, वैसे तो होता ही रहता है, आप लोगों ने रिमिक्स सुने ही है, इतने सारे गानों के इतने रिमिक्सेस बनते ही रहते हैं, ठीक है ना। बट अगर मेरा वर्क किसी इस तरीके से डिस्टॉर्ट हो गया है या किसी ने इस तरीके से मॉडिफाई या म्यूटिलेट कर दिया उसको, जो मेरी रेपुटेशन या मेरे ऑनर को आघात कर रहा है, जिस जो इट इज हर्टिंग माई रेपुटेशन, देन आई कैन रिस्ट्रेन दैट पर्सन फ्रॉम डूइंग दैट। ऑलराइट, सो अगर मेरे सामने अगर माधवी मैं मेरी पेंटिंग जला रही है या उसको मार मार के उसको बेकार कर रही है, ठीक है, वो ओनर है, बट मेरे पास यहाँ पर मेरी इंटेग्रिटी का राइट है कि मैम व्हाट आर यू डूइंग, इट्स हर्टिंग माय रेपुटेशन, 5 पीपल आर वाचिंग यू, यू आर डूइंग दिस टू माय पेंटिंग, यू कांट डू दैट। मैं उनको मना कर सकता हूँ, ठीक है ना, आई कैन डू दैट। ऐसा कॉपीराइट, हालांकि आप लोग बोलोगे सर क्या मतलब है, उन्होंने पैसा देके खरीद लिया, वो चाहे बाहर फेंक दे, कूड़े में फेंक दे, फाड़ दे, फेंक दे, आपको क्या लेने देना, वो उनकी पेंटिंग है, ऐसा आपका मानना होगा। बट कॉपीराइट एक्ट ने मुझे एक इंटेग्रिटी का अधिकार दिया है कि भाई नहीं, मैं ये रोक सकता हूं, मेरा काम है, आप ऐसे कैसे कर रही हो उसके साथ। तो द थिंग इज दैट इट्स अ डिबेट कि भाई उन्होंने पैसा देके खरीद लिया, वो चाहे जो करे उससे, ठीक है, अच्छी बात है, बट कॉपीराइट एक्ट में ऐसा नहीं है। ऐसा मुझे बताया गया है, बोला गया है कि नहीं भाई। इसलिए तीसरा पॉइंट देखिए आप लोग, मॉरल राइट्स ऑफ एन ऑथर आर इंडिपेंडेंट। डज नॉट मैटर कि मेरा काम किसने खरीद लिया, डज नॉट मैटर कि मैंने किसको अपना काम दे दिया, इट डज नॉट मैटर। अगर मेरी रेपुटेशन को कोई क्षति पहुंचती है तो मैं उसको रोकने के लिए पूरी तरीके से अधिकृत हूं। आई एम राइटफुल इन माई प्लेस टू स्टॉप एनीथिंग विच इज mistreating my work. So this is the moral right of an author that is provided under section 57. I hope that is clear. If you have any doubt, please reserve yourself so that बाद में अपन डिस्कशन जरूर कर सकेंगे। Yes, yes, sir. नेक्स्ट एस्पेक्ट इज टर्म ऑफ कॉपीराइट। वेरी इजी थिंग, दो तरीके से टर्म डिवाइड, पहले 50 साल थी, अब 60 साल हो गई, इसलिए दोनों जगह मैंने 60 इयर्स बोल्ड किया हुआ है। बट इट इज डिवाइडेड इनटू टू काइंड ऑफ, एक जहां ऑथर पता है आपको कि कौन है, और एक जहां ऑथर आपको नहीं पता या कोई ऑथर सिंगल पर्सन है। तो अगर कोई ऑथर पता है और अगर कोई ऑथर अपनी ही लाइफ में, वो जैसे इफ अ पर्सन हैज रिटन अ सॉन्ग और रिटन अ पोएम, तो उसकी जिंदगी तक तो वो कॉपीराइट उसका है ही है, उसका कॉपीराइट। उसकी मौत से 60 साल तक भी कॉपीराइट उसी का है, भले ही उसके जो लीगल एयर्स हैं, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो एंजॉय करेंगे, बट 60 इयर्स तक भी वो काम नहीं कर सकते आप जो वो कर सकता था। मतलब 60 इयर्स तक आप परमिशन के बिना उसको कॉपी नहीं कर सकते, उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल आपको परमिशन, एक्सप्रेस परमिशन। तो सपोज एक ऑथर है, सपोज मान लो एक ऑथर है किशोर कुमार, जैसे अब नहीं रहे, तो किशोर कुमार कोई भी गाने, अभी किशोर कुमार को मरे हुए 60 साल नहीं हुए, ठीक है, तो किशोर कुमार के जितने भी गाने हैं, जितने भी लिखे हुए गाने, वो सब कॉपीराइट प्रोटेक्टेड हैं। आप उनका कुछ नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल किशोर कुमार के बेटे, जिनके पास उनके राइट्स होंगे, वो आपको परमिशन ना दे दें करने की, आप कुछ नहीं कर सकते 60 साल तक। 60 साल के बाद फिर वो पूरा वर्क पब्लिक डोमेन में चला जाता है, फिर उसके बाद कुछ भी करते रहो, ठीक है ना। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये 60 इयर्स का टर्म इसलिए दिया गया है ताकि ऑथर की डिग्निटी बनी रहे। ऐसा नहीं हो कि भाई जैसे ही मरा वैसे ही सब लोग आ गए उसके काम को पूरा चीड़ फाड़ करने के लिए। तो 60 इयर्स का ये हो गया पहला, जहां पर ऑथर पता है और ऑथर एक पर्सन है जिसकी जिंदगी में वो काम आया और जिंदगी भर तो रहा ही रहा, उसके मौत के 60 साल बाद। दूसरा है 60 इयर्स पब्लिकेशन से काउंट, वहां पर ऑथर की मौत से काउंट होता है फर्स्ट बुलेट पॉइंट में, सेकंड में पब्लिकेशन से काउंट होता है। ऐसा कब होता है कि पब्लिकेशन के डेट से काउंट करना पड़े, मौत से नहीं, जब ऑथर पता ही नहीं आपको। फर्स्ट, इफ एनी वर्क इज पब्लिश्ड एनोनिमसली और स्यूडोनिमसली। एनोनिमसली मतलब अपन लिखते हैं ना अनोनिमस, कोई ऑथर का नाम नहीं रहता है, किसने लिखा कुछ पता नहीं। यस, स्यूडोनिमसली, कोई और नाम से लिख रहे हैं, जैसे निराला के टाइप से लिखते हैं लोग, अपना नाम नहीं बताते हैं, तो ऑथर की आइडेंटिटी ही पता नहीं है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि मर रहा है कि जी रहा है? वी डोंट नो, वी डू नॉट नो हु इज द ऑथर, तो हमें पता ही नहीं पड़ेगा उसकी डेथ हुई नहीं है। तो ऐसे कामों में, या कोई सिनेमेटोग्राफ फिल्म है, क्योंकि सिनेमेटोग्राफ फिल्म तो क्या होती है कि प्रोड्यूसर वाली होती है, तो प्रोड्यूसर
प्रोड्यूसर की मौत से कोई मतलब नहीं है ना, मतलब तो सिनेमेटोग्राफ फिल्म से है, तो फिल्म के पब्लिकेशन से, साउंड रिकॉर्डिंग के पब्लिकेशन से, गवर्नमेंट कोई वर्क है, कोई रिसर्च वर्क है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO, ILO, ये सब इंटरनेशनल, इनके जो काम है, इनके जो रिसर्च वर्क्स हैं या इनके जो भी लिटरेरी वर्क्स हैं, ये डेथ से काउंट नहीं होते हैं। किसकी डेथ से काउंट करोगे आप? ये पब्लिकेशन से काउंट होते हैं, 60 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दैट वर्क, ठीक है ना। सो ये दो तरीके के वर्क है, बट द टर्म इज सेम, 60 ईयर्स in both the cases. So first is where the author is known, and the second is where author is unknown, or where the work are posthumous work, author के death के बाद ही publish हुआ है, cinematograph film या sound recording. So these are the two categories as far as term of copyright is concerned. Next is assignment. Assignment is, I have a copyright, I am the original author, I am the original owner of the work. Assignment is transferring of that ownership from one person to another person. जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर मैंने कोई कविता लिखी है या कोई कविता का संग्रह, एक बुक लिखी है, उसमें मेरा कॉपीराइट है, डेफिनेटली मैं ऑथर हूं, तो मेरा फर्स्ट ओनरशिप है। मैंने एक असाइनमेंट का एग्रीमेंट लिखा, उसको लिखा और साइन किया, क्योंकि आप देखेंगे कि असाइनमेंट एग्रीमेंट मस्ट बी साइंड एंड इन रिटन एंड साइंड बाय द असाइनर। मैंने कर दिया और मैंने माधवी मैम को दे दिया, मैम ये आपका राइट हुआ, आप इसको ट्रांसलेट कर सकती हैं और इसको मार्केट में बेच सकते हैं, क्योंकि आपके पास आपका पब्लिकेशन हाउस है, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास हैं, तो आप कर सकते हैं। तो वंस आई हैव गिवन दैट राइट, मेरे पूरे राइट मेरे से ट्रांसफर होकर कहां चले जाएंगे? माधवी। इसे कहते हैं असाइनमेंट। ये होली भी हो सकता है और पार्शियली भी हो सकता है, या तो मैं सारे के सारे राइट्स ही दे दूं, या कुछ गिने चुने राइट्स कि मैम सिर्फ ट्रांसलेट ही कीजिएगा, ये नहीं कि भैया आपने उठा के उस पर मूवी बना दी, आपको सिर्फ ट्रांसलेशन का राइट दे रहा हूं, वो भी इतने टाइम पीरियड के लिए, और वो भी सिर्फ मध्य प्रदेश में, आप मध्य प्रदेश से बाहर। तो मैं पूरा असाइनमेंट जो एग्रीमेंट बनता है उसमें सारी चीजें स्पेसिफाई होनी चाहिए, टाइम कितना है, टेरिटोरियल लिमिट्स क्या है, कहां कहां तक वो ऑपरेबल होगा, किस तरीके के राइट्स में दे रहा हूं, मेरे पास तो बहुत सारे राइट्स हैं, उसमें से सारे ही दे रहा हूं, कुछ कुछ दे रहा हूं सिर्फ ट्रांसलेट करने के, या सिर्फ पब्लिक में। जैसे मैंने कविता लिखी, मैंने कहा माधवी मैम इसको कविता आप पब्लिक में पढ़ दीजिए, आपका कॉन्सर्ट है, ये मेरी कविता है, मैं आपको राइट दे रहा हूँ, आप पढ़ दीजिएगा, आप अगले 1 साल तक पढ़ते रहिए उस कविता को, ठीक है। तो कम्युनिकेशन टू द पब्लिक, इट्स ऑल्सो अ राइट, आई हैव गिवन दैट राइट टू मैम। तो ये असाइनमेंट होता है। और अगर असाइनमेंट का कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया है एग्रीमेंट में, तो बाय डिफॉल्ट 5 साल के लिए होता है असाइनमेंट, ठीक है ना। वैसे तो स्पेसिफाई होता है कि भैया 3 साल के लिए होगा, 1 साल के लिए होगा, 10 साल के लिए, अगर टाइम पीरियड नहीं स्पेसिफाइड है तो माना जाएगा कि 5 साल के लिए। और अगर कोई टेरिटोरियल लिमिट स्पेसिफिक नहीं है कि भैया मध्य प्रदेश में होगा, कि सिर्फ भोपाल में होगा, कि सिर्फ कहाँ होगा, कि सिर्फ आप सिर्फ RGTU में यूज कर सकती हैं, तो अगर कोई टेरिटोरियल लिमिट्स नहीं स्पेसिफाइड है असाइनमेंट एग्रीमेंट में, तो माना जाएगा कि पूरे इंडिया में एक्सटेंड, ठीक है। अच्छा, इसमें मेरा क्या फायदा है? मैं रॉयल्टी मांगूंगा कि भैया माधवी मैम आप पढ़ तो रही मेरी कविता, आप तो तालियां बटोर रही हैं, अब आप मुझे हर अपनी जितनी बार भी आप उसको कम्युनिकेट करेंगी 10,000 रुपए आप पर कॉन्सर्ट के हिसाब से मुझे दे दीजिए। सिंपल सी बात है, रॉयल्टी मिलनी चाहिए मुझे, मैं कोई चैरिटी थोड़ी कर रहा हूं यहाँ। सो रॉयल्टी का अमाउंट भी मेंशन होना चाहिए उसमें। तो ये हो गया असाइनमेंट का। असाइनमेंट का एक तरीका और है, विंग है, जो कहते हैं लाइसेंस। अच्छा, लाइसेंस इज अ काइंड ऑफ असाइनमेंट, लेकिन यहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, यहां पर बिना ओनरशिप को ट्रांसफर किए हुए मैं सिर्फ एक परमिशन दे देता हूं कि साहब कर लो। अच्छा, ठीक है ना, तुरंत, इसलिए यहां पर साइन की भी जरूरत नहीं, सिर्फ लिख दिया है बस। माधवी मैम कह रही थी, माधवी मैम ने कहा कि यार अंकित सर मैं आज एक एग्जीबिशन लगा रही हूँ और मेरे पास पेंटिंग्स नहीं है, मैं एग्जीबिशन लगा रही हूँ, सोच रही हूँ लोगों को 100 रुपए देकर एंट्री कराऊं, थोड़ा मेरा भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एक इवेंट है बस, तो मुझे ये जरूरी नहीं है कि मैं अपनी पूरी पेंटिंग उठा के माधवी को दे दूं, मैम लीजिए पेंटिंग्स आपकी हुई सारी। नो, लाइसेंस दे रहे हैं बस मुझे, मैम ये लीजिए 10 पेंटिंग्स है मेरी, आप अपने एग्जीबिशन में लगा दीजिए, और जब एग्जीबिशन हो जाए तो मुझे दे दीजिएगा, और अगर कोई बिक जाए तो बहुत अच्छी बात। तो पब्लिक में कम्युनिकेट करने का अधिकार मैंने एक दिन के लिए मैडम को दे दिया। तो असाइनमेंट नहीं किया मैंने, सिर्फ उनको परमिशन दे दी लिखित में कि भैया कर लो। ये है लाइसेंस, इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, इसमें कोई लिखित नहीं हुआ, इसमें कोई रॉयल्टी नहीं मांगी मैंने, इसमें जस्ट थोड़ा सा अमाउंट लिया मैंने, पैसा लिया कंसिडरेशन, क्योंकि लाइसेंस भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है, और उसके बाद मैंने दे दी। तो इसमें कोई टेरिटोरियल लिमिट और कुछ ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट एन इंसिडेंट बेस्ड थिंग, आइसोलेटेड इवेंट के लिए मैंने लाइसेंस कर दिया कि भाई ठीक है, ये हो गया, ठीक। अच्छा, इसमें 3 तरह के लाइसेंस होते हैं, जो मैंने अभी माधवी मैम को दिया है वो है वॉलेंट्री लाइसेंस, मैंने अपनी मर्जी से मैम को दे दिया।
दो तरीके के लाइसेंस और हैं जो कि कॉपीराइट एक्ट में लिखे हुए हैं, वो है एक कंपल्सरी लाइसेंस और एक स्टेट्यूटरी लाइसेंस। कंपल्सरी लाइसेंस वो होता है जिसमें ऑथर की मर्जी पर कुछ डिपेंड नहीं करता है, गवर्नमेंट ने अगर बोल दिया है कि ये लाइसेंस मिलेगा तो मिलेगा। ये कुछ किस वर्क में मिलता है, ये कैसे काम में मिलता है, अगर ऐसी चीज प्रूव हो जाती है कि ऑथर इंटेंशनली कोई वर्क विदहोल्ड कर रहा है, इंटेंशनली पब्लिक में कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, वो वर्क ऐसा है जो पब्लिक में आना चाहिए, वो ऐसा वर्क है जो पब्लिक को पता होना चाहिए। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा वर्क है और माधवी मैम को लगता है कि मैं इंटेंशनली उस वर्क को पब्लिक में नहीं डाल रहा हूं, तो माधवी मैम क्या है, अपीलेट बोर्ड में अर्जी लगाएंगी और कंपल्सरी लाइसेंस के लिए फाइल कर देंगे कि भाई ये इनको बोलो पब्लिक डोमेन में वर्क लाएं। तो अगर कॉपीराइट बोर्ड अपीलेट बोर्ड अगर देता है वो कंपल्सरी लाइसेंस, तो फिर मेरी मर्जी नहीं चलेगी, वो कंपल्सरी लाइसेंस है। कंपल्सरी मतलब बिना मेरी मर्जी के मुझसे लाइसेंस अगर माधवी मैम को मिल गया तो वो काम मुझसे छीन लिया जाए। उसी तरीके से कुछ जैसे ब्रेल लिपि के कुछ होते हैं, ठीक है ना, डिसेबल्ड पर्सन के लिए कुछ कॉपी वर्क्स होते हैं जो पब्लिक में लाने चाहिए, उसके लिए कंपल्सरी लाइसेंस मिलता है, ठीक है ना, कि भैया ठीक है ये अच्छा है, ऑथर नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं, आप वो काम ले आओ और डिसेबल्ड पर्सन जो है उनके बेनिफिट के लिए आप वो वर्क यूज कर सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में अपीलेट बोर्ड कंपल्सरी लाइसेंस इशू कर देता है। स्टेट्यूटरी लाइसेंस क्या होता है? अच्छा, इसमें स्टेट्यूटरी लाइसेंस है मतलब किसी अपीलेट बोर्ड की जरूरत नहीं। स्टेट्यूटरी मतलब लॉ के अंदर आपको मिल जाएगा, अगर आपने लॉ के हिसाब से सारी चीजें कर दी तो मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप लोग यूट्यूब पे कवर वर्जन सुनते होंगे, ठीक है ना, कुमार सानू के बहुत गाने हैं पुराने, दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके, और ये सारे बहुत सारे गाने, इनके सबके कवर वर्जन बहुत सारे नए नए लड़कों ने निकाले हुए। ये कवर वर्जन क्या है? ये स्टेट्यूटरी लाइसेंस लेके किया जा सकता है कवर वर्जन। बस इसका क्या मतलब होता है, आपको सबसे पहले कवर वर्जन करने के लिए ये जरूरी होनी चाहिए कि वो ऑलरेडी चीज पब्लिश हो चुकी है। ऐसा नहीं कि कुमार सानू कोई गाना लिख रहा है और उसने किया नहीं और आप उससे ले आए, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में एक काम हो चुका है, अब आप उसका कवर वर्जन दूसरे लेवल के साथ बनाना चाहते हो, किसी दूसरे लेवल के साथ, आपको वहां पर ऑथर को मेंशन करने की जरूरत नहीं कि ये उसका, यू जस्ट मेंशन कि ये सॉन्ग है, इसका कवर वर्जन में रिलीज कर। तो ऐसे में आपको अपने आप स्टेट्यूटरी लाइसेंस मिल जाता है, मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली लॉ के अंडर लाइसेंस का प्रावधान है, उसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बट द ओनली थिंग इज दैट जो जो एक्ट में लिखा हुआ है वो आपको करना है। अदरवाइज अगर कोई ऑथर अफेंड हो गया तो आप पर क्लेम कर सकता है, फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि साहब आपने स्टेट्यूटरी लाइसेंस के लिए जो रूल्स चाहिए थे वो फॉलो किए कि नहीं किए। करेक्ट। तो ये चीजें थोड़ा सरफेस की चीजें हैं, इसको थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे किसी और सेशन में, या जब और ज्यादा डीप में, जब लाइसेंस और डीप में पढ़ा जाएगा तब। अभी आई एम जस्ट गिविंग एन इंट्रोडक्शन कि दीज आर द थिंग्स दैट आर प्रोवाइडेड इन द कॉपीराइट एक्ट। ऑलराइट, so this is the scheme of licensing of copyright. So I hope that you have understood the difference between assignment and license. असाइनमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, लिखित में होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, राइट स्पेसिफाइड होना चाहिए। लाइसेंस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट के लिए आप परमिशन देते हो कि हाँ कर लो, ठीक है। तो ये हो गया दो चीज, असाइनमेंट और लाइसेंस। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज कि किसी कॉपीराइट वर्क का आप इंफ्रिंजमेंट कब करते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज, जो राइट्स अपन ने पढ़े थे, द राइट्स दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर, कौन कौन से राइट्स थे? रिप्रोड्यूस करने का, अडैप्ट करने का, ट्रांसलेट करने का, ये सब राइट्स मेरे पास एक्सक्लूसिव है। अगर मैं ऑथर हूं तो ये मेरे एक्सक्लूसिव राइट्स, ठीक है। अगर, और उनको करने का अधिकार सिर्फ मेरा है। अगर कोई भी इंसान बिना लाइसेंस के वो काम करता है, वो इसका मतलब वो इन्फ्रिंज कर, या फिर अगर या तो माधवी मैम ने बिना परमिशन के उसको पब्लिक में सुना दिया या ट्रांसलेट कर दिया तो वो इन्फ्रिंज कर दिया उन्होंने, या फिर अगर मेरी बनाई हुई कोई फोटो, सॉरी पेंटिंग, या मेरी वही बनाई हुई कोई मूवी, या मेरा लिखा हुआ गाना माधवी मैम ने पब्लिक में गा दिया प्रॉफिट के लिए, वहां पर कोई ऑडियंस टिकट देके आई हुई है और उन्होंने मेरा गाना गा दिया, अपने 4 गाने गाए, 5वां गाना मेरा गा दिया, मेरी परमिशन है ही नहीं उनके पास, मुझे किसी आके बोला अरे वो तो आपको गाना गा दी। अब जब मुझे पता चलेगा तो मैं आप पर इंफ्रिंजमेंट केस लगाऊंगा। दैट विदाउट माय परमिशन हाउ कैन यू इंसर्ट अ सॉन्ग इन योर प्लेलिस्ट एंड परफॉर्म इट इन फ्रंट ऑफ अ पेइंग ऑडियंस? नॉन पेइंग ऑडियंस तो ठीक है, अभी आएगा अपन फेयर यूज देखेंगे, फेयर यूज में नॉन पेइंग ऑडियंस के सामने इंफ्रिंजमेंट नहीं होता है। बट अगर, क्योंकि कमर्शियल यूटिलाइजेशन, जहां पर आपका यूटिलाइजेशन कमर्शियल हो गया, जैसे मान लीजिए अगर ये मेरी जो लेक्चर है, अगर ये आगे भी अगर यूज होता है एकेडमिक पर्पसेस के लिए,
एकेडमिक पर्पसेस के लिए, तो ये इंफ्रिंजमेंट नहीं होगा। बट अगर यही रिकॉर्डिंग इसकी कॉपी बना के अगर बाजार में बेचने लग जाए कि लेक्चर्स ऑन कॉपीराइट, तो वो क्या हो जाएगा, मेरी परमिशन के बिना। तो जहां चीजें कमर्शियल हो गई, प्रॉफिट के लिए हो गई और परमिशन नहीं हो ऑथर की, तो आपने उसका राइट इन्फ्रिंज कर ही रहे हो और क्या कर रहे हो, उसके हक का प्रॉफिट आप मार रहे हो। व्हाई? सो द मोमेंट थिंग्स टर्न कमर्शियल एंड नॉट एकेडमिक, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट अकर्स। ऑलराइट, तो ये हो गया पहला सॉर्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। सेकंड सॉर्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी कोई इन्फ्रिंजिंग कॉपीज हैं, और इस स्टेज पर मैं एक बात बताना चाहूंगा दैट आप लोगों में से सबने इन्फ्रिंजमेंट किया है कहीं ना कहीं। कैसे? क्योंकि आप लोगों ने सबने 30 रुपए की MP3 खरीदी हुई है, जो पायरेटेड थी, जो मिलती है फुटपाथ पे न्यू मार्केट में, सबने खरीदी हुई। वो सब पायरेटेड कॉपीज है, सबने खरीद खरीद के, आपने भी खरीदी है और आपने कॉपी बना बना के लोगों को भी बेची है, ठीक है ना, सबने अपना काम किया होगा। बट जब पता चलेगा सामने वाले को, तब तो कुछ होगा। पायरेसी मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया का और वर्ल्ड का, बिलियन डॉलर्स का पायरेसी मार्केट है। अब जाके थोड़ी स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन और रूल्स हुए तो जाके अब इंसान लीगली नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे चीजें देखता है, वरना पहले तो डाउनलोड करके देखते थे फ्री में सारी चीजें। तो जब इंफ्रिंजिंग कॉपीज ऑलरेडी हैं आपके पास, पायरेटेड डीवीडीज या सीडीज, अगर आप उनको बेचते हो या किराए पे देते हो या पब्लिक में प्रॉफिट के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हो या किसी थिएटर में या किसी अपने ही कुछ प्रोजेक्टर लगा के लोगों को पैसे लेके दिखा रहे हो या इंपोर्ट करवा रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पज से, तो आप मतलब इंफ्रिंज कर रहे हो। अच्छा, आप एक कॉपी से इंपोर्ट करा रहे हो सिर्फ अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, तो कोई इंफ्रिंजमेंट नहीं, नो इशू। मैंने पहले ही बोला, जहां चीजें कमर्शियल हुई, द मोमेंट इट टर्न्स टू प्रॉफिट and you have not acquired or obtained the permission of the copyright author, you are infringing his copyright. all right, ये हो गया इन्फ्रिंजमेंट। अच्छा, अब तो मैंने बता दिया कि इन्फ्रिंजमेंट कब होता है। अब ये देखते हैं कि कब इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा। ऐसे काम आप करोगे कि लग तो रहा है कि इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में नहीं होगा और कोई आपको कुछ सूट फाइल नहीं कर सकता। ये होता है फेयर डीलिंग और फेयर यूज, सेक्शन 52 में। इट्स अ लेंथीएस्ट सेक्शन ऑफ द कॉपीराइट एक्ट। 52 जो आप देखेंगे, सबसे बड़ा सेक्शन है ये कॉपीराइट एक्ट, क्योंकि कॉपीराइट एक्ट हमेशा एकेडमिक्स नॉलेज की प्रमोशन के लिए बना। जब तक आप नॉलेज का कमर्शियलाइजेशन नहीं कर रहे हो, जब तक आप नॉलेज को गुड फेथ में यूज कर रहे हो, तब तक कॉपीराइट एक्ट आपको नहीं रोकेगा। कोई भी लॉ ऑफिसर, कोई भी अधिकारी आपको नहीं रोक सकता जब तक आप नॉलेज की नुमाइश या कमर्शियलाइजेशन नहीं कर रहे हो, तब तक आपको नहीं रोकेगा। तो आप देख रहे हो, जैसे प्राइवेट और पर्सनल यूज इंक्लूडिंग रिसर्च के लिए अगर आप किसी का कोई वर्क उठा रहे हो, तो आपको कोई इंफ्रिंजमेंट नहीं। प्लेजरिज्म हो सकता है लेकिन इंफ्रिंजमेंट नहीं होगा। माधवी मैम तो जानती हैं, अपन एकेडमिक्स के लोग हैं, प्लेजरिज्म कितना सीरियसली किया जाता है रिसर्च पेपर में। प्लेजरिज्म हो रहा है लेकिन इंफ्रिंजमेंट नहीं हो रहा है, कोई आप पर सूट नहीं लगा सकता। प्लेजरिज्म तो एकेडमिक प्रैक्टिस है ना, कि आप भैया क्यों कॉपी कर रहे हो, लेकिन वो रिसर्च के लिए है, तो वो इंफ्रिंजमेंट नहीं है, वो प्लेजरिज्म है। प्लेजरिज्म इज नॉट अ क्राइम, इट्स नॉट पनिशेबल। डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है आप पे, पनिशेबल नहीं है क्राइम कि आप पर फाइन लग गया या आपको सजा हो गई। तो पर्सनल यूज के लिए और रिसर्च के लिए अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हो तो आप पनिशेबल नहीं, इंफ्रिंजमेंट नहीं। अगर आप किसी मूवी का क्रिटिसाइज कर रहे हो, मान लो किसी ने मूवी रिलीज करी, मान लो अभी नई मूवी आने वाली है, राधे आएगी सलमान खान की, अगर मान लो आपने उसका रिव्यू लिखा कि ये मूवी घटिया है, कोई स्क्रीन प्ले नहीं है, कुछ इसकी स्टोरी नहीं है, तो उसको वो इंफ्रिंजमेंट नहीं है। बंदा जानता है मूवी बनाने वाला कि भाई अगर मैं पब्लिक डोमेन में मूवी डाल रहा हूं तो इंसान क्रिटिसाइज करेगा, इंसान तारीफ भी करेगा, इंसान क्रिटिसाइज भी करेगा। तो अगर आप किसी के काम का रिव्यू या क्रिटिसिज्म करते हो तो वो इंफ्रिंजमेंट में नहीं आता। करंट इवेंट्स को रिपोर्ट करना, न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल जितने भी, भाई इंडिया मैच जीत गई, ये हो गया, तो उसमें कोई कॉपीराइट वायलेशन नहीं। ठीक है, सिर्फ लेक्चर डिलीवर्ड इन पब्लिक, एग्जैक्टली दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। ठीक है ना। अगर मैं किसी और इंसान का कोई कोट आपके सामने रख देता हूं, या किसी और इंसान की बुक आपके सामने रख देता हूं कि ऐसा, या किसी और इंसान का बोली हुई की चीज आपको बोल देता हूं, तो वो इंफ्रिंजमेंट नहीं होगा, हालांकि मैं उसकी चीज कॉपी कर रहा हूं यहाँ पे। भाई वो जो शुरुआत में जो स्टेटमेंट था, एनीथिंग वर्थ कॉपीइंग इज वर्थ प्रोटेक्टिंग, वो मेरा स्टेटमेंट थोड़ी है, वो किसी और का है, लेकिन मैं क्या इंफ्रिंज कर रहा हूं? नहीं। व्हाई? बिकॉज इट्स अ लेक्चर बीइंग डिलीवर्ड इन पब्लिक, इट्स नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस। ऑलराइट, सो उसके बाद रिप्रोडक्शन ऑफ एनी वर्क फॉर जुडिशियल प्रोसीडिंग और परफॉर्मेंस ऑफ एनी लिटरेरी वर्क
इन फ्रंट ऑफ अ नॉन पेइंग ऑडियंस। जैसे मान लो मैं हूं, मेरे पास मेरे घर पे 30-35 लोग आए हुए हैं, मैंने अपना बेहतरीन 2-4 गाने गा दिए, किशोर कुमार का गा दिया, एक आतिफ असलम का गा दिया, ये सब मैंने परफॉर्म कर दिया, लेकिन इन्फ्रिंजमेंट नहीं किया मैं, बिकॉज दैट ऑडियंस इज नॉन पेइंग ऑडियंस। ऑलराइट, तो ऐसे करके ये सारी लिस्ट आपके सामने है, एक एक लिस्ट करके पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, बट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, लास्ट पॉइंट देखिए आप, बारात में आप लोग नाचते हैं, एक भी गाना ओरिजिनल नहीं रहता उसमें, सारे गाने सिर्फ शादी के रहते हैं, सारे गाने जो ऑलरेडी किसी ना किसी की कॉपीराइटेड हैं, सबके कॉपीराइटेड गाने हैं, चाहे वो ये आज मेरे यार की शादी है, चाहे कोई भी गाना हो, सारे गाने कॉपीराइटेड है, लेकिन कॉपीराइट ने स्पेशल प्रोटेक्शन दिया हुआ है बारात में नाचने वालों को, शादी दूल्हे को, बारात में डीजे जो बजा रहा है उसको, सबको प्रोटेक्शन है। संगीत में इतने सारे गाने बजते हैं, डांस करते हो आप लोग, पब्लिक में गाना बजता है, सब कॉपीराइटेड सॉन्ग है, कौन सा ओरिजिनल सॉन्ग बजाता है कोई, लेकिन सब प्रोटेक्टेड है क्योंकि वो सेरेमनीज। ऑलराइट, और ऑफिशियल सेरेमनी, अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कॉन्सर्ट रखा है, अगर उसमें आप किसी का गाना गा रहे हो, अगर मान लो गवर्नर के यहाँ कोई फंक्शन है, अगर मुझे बुलाया गया गाना गाने के लिए और मैं 2-4 गाने गा दिए अगर मैंने किसी और के, तो इन्फ्रिंजमेंट थोड़ी होगा, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथराइज फंक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये कुछ, तो सेक्शन 52 जो है वो फेयर डीलिंग कही जाती है, फेयर यूज कहा जाता है, कि भाई आप अगर ये चीजें कर रहे हो तो आप इंफ्रिंजमेंट में नहीं आ रहे हो, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप कमर्शियली मोटिवेटेड नहीं थे। प्रॉफिट से जहां आपने मोटिवेशन आपका प्रूव हो गया, अगर आपके सामने वाले लॉयर ने ये दिखा दिया कि आप प्रॉफिट से मोटिवेटेड थे, तो फिर इंफ्रिंजमेंट का सूट आप पर लग जाएगा, और ये सजाएं या ये रेमेडीज अवेलेबल होंगी। सिविल रेमेडीज भी अवेलेबल है, क्रिमिनल रेमेडीज भी अवेलेबल है। सिविल रेमेडीज में क्या है, मेरे पास इंजंक्शन ले सकता हूं मैं, कि साहब इंजंक्शन ले लिया, सामने वाले को रोक दिया करने से कि जो भी कर रहा आप रुक जाओ। डैमेजेस जो भी मैं कुछ क्लेम कर सकता हूँ, कोई कॉम्पनसेशन वो क्लेम कर सकता हूँ। अकाउंट्स फॉर प्रॉफिट, भाई मेरे काम को यूज करके आपको अब तक कितना प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट का मुझे पूरा हिस्सा दीजिए, ठीक है ना। या रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपीज, कि साहब आपके पास मेरी कुछ पायरेटेड डीवीडीज हैं मेरे काम की, या मेरे काम की कुछ इलीगल कॉपीज हैं, वो आप मुझे मुझे दे दीजिए, अपने पोजीशन से हटा के मुझे दीजिए। तो ये कुछ सिविल रेमेडीज जो आपको मिल सकती है, ठीक है ना। पेनल्टीज, क्रिमिनल प्रिजन भी है, अगर आप पायरेटेड कॉपीज बेच रहे हो, खरीद रहे हो, अगर आप पर क्रिमिनल केस लग गया तो 6 महीने या 3 साल तक की सजा, 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। पुलिस के पास पावर है कि वो आपके घर घुस के, अगर उसको शक है कि आपके पास कोई पायरेटेड सामान रखा हुआ है डीवीडीज, तो वो उसको सीज कर सकती है, ठीक है ना। अगर आपको पता है कि ये कॉपीज पायरेटेड है, फिर भी आप उसकी कॉपीज बना रहे हो, तो आपको सजा 2 साल तक की हो सकती है और फाइन हो सकता है सेक्शन 65 में। और यहाँ पर कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस जो है, केस कहाँ लगेगा, केस लगेगा या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास के पास जुडिक्शन नहीं है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास केस लगेगा, अगर पनिशमेंट दिलवानी है आपको। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास कॉपीराइट एक्ट में केस हैंडल करने का जुरिस्डिक्शन नहीं, ठीक है। ये हो गए रेमेडीज एंड पेनल्टीज, ये हो गए कॉपीराइट एक्ट की बात, ये हो गई कॉपीराइट की बात। अब आते हैं नेबरिंग राइट्स पे। अगर आप ट्रिप्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा था कॉपीराइट एंड नेबरिंग राइट्स, तो कॉपीराइट की बात तो अपन ने कर ली है, अब उसके नेबरिंग राइट्स की बात करते हैं, जो आजू बाजू के जो भी अधिकार होते हैं जो कॉपीराइट से सिमिलर होते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट। ESPN स्टार स्पोर्ट्स पर जितने भी लाइव स्पोर्ट्स मैचेस आते हैं या लाइव कॉन्सर्ट्स आते हैं, उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदता है इंसान, आप समझ रहे हो ना। आईपीएल का ब्रॉडकास्टिंग राइट कौन खरीदता है हमेशा, सेट मैक्स खरीदता है, सोनी खरीदता है हमेशा, आईपीएल वहीं पर आता है। उसी वक्त कोई और उस ब्रॉडकास्ट को नहीं दिखा सकता, या उसकी कॉपी भी, उसके हाइलाइट्स भी कोई और नहीं दिखा सकता। ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट मैं ही हूं, अगर मैंने खरीदा है आईपीएल का ब्रॉडकास्टिंग राइट, तो मैं ही उसका लाइव दिखा सकता हूं, मैं ही उसकी हाईलाइट दिखा सकता हूं, मैं ही सब दिखा सकता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं दिखा सकता। हाँ, छोटे मोटे पोर्शन में दिखा सकता है न्यूज चैनल की, भाई इसने अच्छी पारी खेली, ये खेली, लेकिन पूरा मैच, पूरी हाईलाइट नो। आई हैव बॉट दोज ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, आई कैन। और ये कब तक चलेगा, 25 साल। अगर कोई एक मैच आज ब्रॉडकास्ट किया है मैंने, तो मेरी ब्रॉडकास्ट डेट से, अगर मान लो आज की डेट है 13 मार्च, 13 मार्च को अगर कोई मैच ब्रॉडकास्ट हुआ है,
तो वो कोई और इंसान जब तक मैं किसी को परमिशन नहीं दे दूं 25 साल तक अपने चैनल पे ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता वो मैच, 25 साल तक, अनलेस अनटिल आई गिव हिम द परमिशन। उससे पैसा लूंगा और उसको भेज दूंगा, ठीक है ना। लेकिन परमिशन और पैसे के बिना, कंसिडरेशन के बिना कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने शुरुआत नहीं पढ़ा होगा, आई एम श्योर कि सबने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ ही लिया है जितने भी आज यहाँ बैठे हुए, कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो भाई मैं अगर पैसा लेके आपको बोल रहा हूं कि आप दिखा सकते हो तो दिखाओ, अदरवाइज आप नहीं दिखा सकते, ठीक है ना। तो अगर आपने मेरे लाइसेंस के बिना या मेरी परमिशन के बिना ब्रॉडकास्ट किया, या अच्छा आपने देखा होगा काफी रेस्टोरेंट्स होते हैं जो वर्ल्ड कप फाइनल की स्क्रीनिंग करते हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग, स्पेनिश प्रीमियर लीग की, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, सब की स्क्रीनिंग करते हैं स्क्रीन लगा के, और 50-100 रुपए की एंट्री टिकट लेते हैं। गलत करते हैं। अगर पता चलेगा, या तो चैनल वालों से आपने बात कर ली हो कि साहब हम करने वाले हैं ऐसा, अगर आपने नहीं करी है तो ये सब रेस्टोरेंट सब अंदर जाएंगे, सब के सब इन्फ्रिंज करते हैं। तो आप किसी और का ब्रॉडकास्ट किसी बिना अथॉरिटी के पेइंग ऑडियंस को सामने नहीं दिखा सकते। अगर आपको अपने रेस्टोरेंट में किसी भी वर्ल्ड कप फाइनल की या किसी रेसलिंग मैच की ब्रॉडकास्टिंग करनी है और उसके लिए एंट्री रख रहे हो आपकी, आप 50-100 रुपए कवर चार्ज देके अंदर आइए, आपको पहले ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी पड़ेगी, साहब हम ऐसा कर रहे हैं। अगर आपने बिना बात करी तो यू आर इन्फ्रिंजिंग हिज राइट, ऑलराइट। और अगर आपको इसी रिप्रोडक्शन करते हो, रिकॉर्डिंग की, अगर वापस उसको दिखाना चाहते हो, या फिर आप इसी किसी ब्रॉडकास्ट को, जितने भी मूवी चैनल्स, ये जितने भी लोकल केबल चैनल्स रहते हैं जो मूवीज दिखाते हैं कॉपी करके मूवीज दिखाते हैं, थिएटर कॉपीज, ये सब गलत है। तो ये ब्रॉडकास्टिंग राइट के वायलेशन में ब्रॉडकास्टिंग का राइट और उसके रिप्रोडक्शन का राइट सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास ही होता है, जब तक कि वो खुद किसी को लाइसेंस न दे। तो ये हो गया ब्रॉडकास्टिंग राइट, ये है कॉपीराइट का पहला नेबरिंग राइट। दूसरा नेबरिंग राइट है परफॉर्मर्स राइट। अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। पहले परफॉर्मर्स रिकॉग्नाइज नहीं थे, परफॉर्मर्स बाद में रिकॉग्नाइज हुए, क्योंकि ट्रिप्स जब हमने साइन किया उसके बाद परफॉर्मर की डेफिनेशन आई। क्योंकि पहले हुआ था, एक केस आप लोग पढ़ोगे जब आप कॉपीराइट पढ़ोगे, देवानंद वर्सेस फॉर्चून फिल्म्स का केस था, जिसमें देवानंद ने अपनी परफॉर्मेंस के लिए राइट क्लेम किया था उस फिल्म में। आई थिंक वो फिल्म हेलो डार्लिंग थी शायद देवानंद। तो उसमें उसने अपनी परफॉर्मेंस के लिए क्लेम किया, बट वो केस था 94 से पहले का, आई थिंक 1973 या 1978 का केस था। तो उसमें उसको नहीं मिला था, बिकॉज उस वक्त परफॉर्मर्स का स्टेटस रिकॉग्नाइज नहीं था इंडियन कॉपीराइट रेजिम। अब परफॉर्मर्स का स्टेटस रिकॉग्नाइज्ड है, सब परफॉर्मर है आज के डेट में, एक्टर, सिंगर, म्यूजिशियन, डांसर, स्नेक चार्मर, कॉन्जरर, मैजिशियन, जितने भी लोग हैं सब परफॉर्मर्स अपना परफॉर्मर राइट क्लेम कर सकते हैं। और एनी पर्सन हु डिलीवर्स अ लेक्चर, जैसे मैं भी हूं इस वक्त परफॉर्मर हूं, विद इन द कॉपीराइट एक्ट आई एम अ परफॉर्मर राइट नाउ एंड आई कैन क्लेम परफॉर्मर्स राइट्स। दो तरीके के परफॉर्मेंस राइट्स दिए हुए हैं, एक्सक्लूसिव और मॉरल। क्या क्या होते हैं अपन पढ़ेंगे। टर्म क्या होती है, आज की डेट में अगर परफॉर्मेंस दी है मैंने, अगर आज की डेट में आई हैव डिलीवर्ड दिस लेक्चर, आज की डेट से अगले साल से 50 साल तक ये परफॉर्मेंस का राइट मेरा है। इसके ऊपर जो एक्सक्लूसिव राइट होंगे वो मेरे होंगे। इस परफॉर्मेंस की कोई भी कॉपी नहीं बना सकता, इसको मेरी मर्जी के बिना कोई भी लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता, इसकी कॉपी बना के मार्केट में बेच नहीं सकता, ठीक है ना। ये यहां पर दिखा हुआ है, ये है एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ द परफॉर्मर, सेक्शन 38A में दिए हुए हैं कि ये सारी चीजें मैं ऑथराइज कर सकता हूं। मेरी ऑथराइजेशन के बिना, परफॉर्मर की ऑथराइजेशन के बिना ये चीजें नहीं की जा सकती। आप मेरी परफॉर्मेंस का बना के किसी सीडी में नहीं रख सकते, फर्स्ट। आप इसकी बना के कॉपी पब्लिक में नहीं दे सकते, आप डायरेक्टली इसको लाइव नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, या आप किसी को कमर्शियल सेल भी नहीं कर सकते और कमर्शियली रेंट पे भी नहीं दे सकते, ठीक है ना। ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर सकते। एक्सेप्शन इसका एक है कि अगर मेरी परफॉर्मेंस, मैंने एग्री कर लिया है कि किसी सिनेमाटोग्राफ फिल्म का पार्ट होना चाहिए, जैसे मान लो माधवी मैम एक फिल्म बना रही हैं, उन्होंने एक फिल्म बनाई है कि व्हाट आर द लेक्चर्स दैट हैव बीन डिलीवर्ड बाय पर्संस इन आरजीटी। उन्होंने एक पूरी फिल्म बना रही है जिसमें पीछे म्यूजिक भी है, जिसमें डीन सर का इंटरव्यू भी है, एचओडी मैम का इंटरव्यू भी है, उसमें मेरे 15 मिनट का पार्ट उनको रखना है। तो अगर मैंने एग्रीमेंट साइन कर दिया कि हाँ रख लीजिए, तो वो परफॉर्मेंस जो मेरी है वो उस फिल्म में मर्ज हो जाएगी, फिर मैं उसमें क्लेम नहीं कर सकता। आप लोग को समझ में आ रही बात। मेरी परफॉर्मेंस, अगर मैंने उस फिल्म का पार्ट बनने के लिए परमिशन दे दी है कि माधवी मैम की जो फिल्म पूरी बन रही है उसमें मेरी 15 मिनट की परफॉर्मेंस हो जानी चाहिए,
देन माई परफॉर्मेंस गेट्स मर्ज्ड इन दैट फिल्म, और मैं अलग से उसको क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन मेरी एग्रीमेंट की जरूरत है, रिटन एग्रीमेंट, वर्ड आप देख लीजिए, रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी है उसके लिए, अदरवाइज मेरी परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते, मेरी परमिशन, लेकिन एक बार मैंने परमिशन दे दी तो फिर उसके बाद मैं अलग से क्लेम नहीं कर सकता, वो परफॉर्मेंस उस फिल्म का पार्ट बन गई। इसी तरीके से यही रीजन है कि जो शाहरुख खान है, जो अक्षय कुमार है, ये लोग फिल्म की प्रॉफिट से भी पैसा लेते हैं, अपने फीस के अलावा ये लोग जो फिल्म प्रॉफिट कमाती है उससे भी पैसा खींचते हैं, क्योंकि ये अपनी परफॉर्मेंस अलग से रिकॉग्नाइज करवाते हैं। अदरवाइज ये छोटे मोटे एक्टर जो अभी अभी आ रहे हैं ना, ये बेचारे विकी कौशल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब फिल्म का ही पार्ट है, इनकी परफॉर्मेंस एक बार फिल्म में चली गई तो चली गई, ये फिर अलग से क्लेम नहीं कर सकते। शाहरुख खान बड़े लोग हैं, वो अलग से बोलते हैं कि भाई हमारी परफॉर्मेंस अलग से रहेगी, उसका राइट अलग से रहेगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं रॉयल्टीज। द परफॉर्मर शैल बी, भले ही मैंने रिटन एग्रीमेंट में मैं भी उनको बोल दिया मैं आपकी 15 मिनट की परफॉर्मेंस रख लीजिए मेरी, ठीक है, लेकिन कुछ रॉयल्टी दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक पूरा एग्रीमेंट। और लास्ट है मॉरल राइट। तो मॉरल राइट वही है जो ऑथर के थे, वही परफॉर्मर के। भले ही आप मेरी परफॉर्मेंस अपने मूवी में यूज कर रहे हो, लेकिन आप ये बोलने से मुझे कतई नहीं रोक सकते कि मैं ये बोलूं कि भाई ये मैंने किया, दिस इज माई परफॉर्मेंस, ये मैंने करी थी, ये मैंने गाना गाया था, ये मैंने डांस किया, ये मेरा डांस स्टेप है, मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ। है आपकी मूवी में, बनाओ आप पैसा उससे, आपने पैसा लगाया है मूवी, मुझे आपने मेरी फी दे दी है, मैंने पैसा लेके आपके मूवी में काम कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, बट आप मुझसे ये कहने का अधिकार नहीं छीन सकते कि भाई ये मेरी डांस स्टेप है, ये मेरी परफॉर्मेंस है। आई कैन क्लेम टू बी अ परफॉर्मर, दैट्स माई मॉरल राइट, दैट्स माई नैतिक राइट। और सेम चीज अगर आप मेरी डांस में, या अगर अगर आप मेरी एडिट कर देते हो या डिस्टॉर्ट कर देते हो, म्यूटिलेट कर देते हो, जिससे मेरी रेप्यूटेशन को ठेस पहुंच रही है, मैं उसको रिस्ट्रेन करवा सकता हूँ, रोक सकता हूँ। लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है कि फिल्म एडिटिंग के टाइम पे कुछ रोल पार्ट काट दिया जाता है, कुछ रोल काट दिया जाता है। तो बेटर पर्पस के लिए अगर प्रोड्यूसर को लगता है, अगर डायरेक्टर को लगता है कि ये इतना पार्ट कट जाना चाहिए या एडिट हो जाना चाहिए, तो उसमें मैं क्लेम नहीं कर सकता कि आपने कैसा कर दिया, कैसा कर दिया। नो, इट्स फॉर अ बेटर पर्पस। फिल्म थोड़ी छोटी हो जाएगी, ज्यादा लंबी हो रही थी, तो वहां पर वो डिस्टॉर्शन, म्यूटिलेशन या मॉडिफिकेशन नहीं कहलाएगा, इट्स जस्ट फिल्म एडिटिंग। वो तो होती ही है बेटर पर्पस सब करने के लिए। 4 घंटे की फिल्म हो गई, उसको एडिट कर करके लाना पड़ेगा ना 3 घंटे तक। आशुतोष गोवात्रिकर की फिल्म तो है नहीं कि बिना मर्जी बनाते चले जाओ, 4.5 घंटे की बना दी, जोधा अकबर, ये सब चीजें। तो द थिंग इज दैट फिल्म एडिटिंग मैटर्स। सो अनलेस एंड अनटिल, अनलेस दिस इज द एक्सेप्शन कि फिल्म एडिटिंग का पार्ट है, अगर कोई मेरी परफॉर्मेंस को डिस्टॉर्ट करता है या कोई ऐसी चीज करता है मेरी परफॉर्मेंस के साथ जो कि मेरे रेप्यूटेशन के अगेंस्ट है, या मेरे that is something prejudicial to my reputation or hurtful to my reputation, then I can definitely stop that particular act. ये एक पूरा स्ट्रक्चर था कॉपीराइट एक्ट का बेसिक, जो मैंने इस कम टाइम में आपको एक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशंस रिक्वायर्ड फ्रॉम माय साइड, आई वुड बी ग्लैड टू डू दैट। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। बहुत ही मतलब पर्सनली अगर मैं कहूँ तो बहुत ही अच्छा सेशन था। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा कॉपीराइट के बारे में, और बेसिकली सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स ऐड हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो मोस्टली फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं, जो अभी आईपीआर जिनके सिलेबस में नहीं है, जो बिल्कुल एकदम नई चीज़ सीख रहे हैं, और सबके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। और काश, मैं तो ये चाहती हूँ कि शायद ये कॉपीराइट होता कि हम इस तरह से बार बार आपको सुनते, इस चीज़ पर भी कॉपीराइट होता तो बहुत अच्छा होता। बहुत अच्छा सेशन था। अब आगे बढ़ते, खैर टाइम वैसे बहुत कम है, तो क्वेश्चन आंसर का एक सेशन देख लेते हैं। If any participants wants to ask any question relating to the topic, please go ahead. सर कुछ क्वेश्चंस आए हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन। शाहबाज ने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, अगर मैं शाहबाज जी शाहबाज के तो इसमें मेरा पहला क्वेश्चन जो मैं लेना चाहूंगा इस, इफ समवन हैज एन आइडिया फॉर अ बिजनेस एंड ही वांट टू कॉपीराइट इट, कैन यू डू इट? यस। जैसे कि मैंने पहले ही बोला शाहबाज की आइडियाज पे कोई कॉपीराइट नहीं होता है, और वंस सी आपका बिजनेस का जो आइडिया है वो पेटेंट का डोमेन हो सकता है, लेकिन वो भी पेटेंटेबल नहीं है। आइडिया किसी भी तरीके से प्रोटेक्टेड है ही नहीं, जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप पब्लिक में नहीं डालेंगे उसको।
क्या पता है आपका क्या आइडिया चल रहा है, ठीक है ना। मैं आज एक बिजनेस आइडिया दे दूं कि मैं लोगों को 1 महीने में वर्ल्ड टूर करवाने वाला हूँ, सब जितने भी भोपाल के जितने भी एकेडमिशियंस है, फैकल्टी मेंबर, सबको एक वर्ल्ड टूर करवाऊंगा और सबसे ऐसा ऐसा ऑफर दूंगा। भाई मैंने बोल दिया, बैठ के किसी दिन बोल दिया, मूड आया मैंने बोल दिया, ये आइडिया है, लेकिन ये एक्सप्रेस जब तक आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे। सी एक और पर्सपेक्टिव ये है शाहबाज इस चीज का कि बिजनेस आइडिया और आर्टिस्टिक आइडिया दो अलग अलग चीज। बिजनेस का कॉपीराइट से कोई लेना देना नहीं, तो बिजनेस आइडिया को आप कॉपीराइट नहीं कर सकते। हालांकि एक क्वेश्चन बहुत पर्टिनेंट पूछा है आपने कि कॉपीराइट करवा सकते हैं क्या। सबसे पहली बात तो ये है कि आइडिया कॉपीराइट हो ही नहीं सकता है, तो आप करवा नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर चीज है कि हाँ, आप अपने बिजनेस आइडिया को प्रोटेक्ट कैसे करोगे, तो वो चीज है। आप बिजनेस आइडिया किसी को बता ही क्यों रहे हो, उसको ट्रेड सीक्रेट रखो ना अपना। भाई कोका कोला है, केएफसी है, इन सबकी रेसिपीज हैं, इसे किसको पता है, ये किसी को नहीं पता, इसलिए तो उनके पास मार्केट एज है। भाई कितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स बन जाए, स्प्राइट बन जाए, 7 अप, माउंटेन ड्यू, कुछ भी बन जाए, कोका कोला का टेस्ट कोई बीट नहीं कर सकती। कोका कोला का जो रेसिपी है वो एक वॉल्ट में बंद है, ताले में लगा हुआ यूएस में, वो उनका ट्रेड सीक्रेट। आपकी बिजनेस करने का तरीका, आपके कस्टमर को अप्रोच करने का तरीका, आपका खुद का आइडिया, उसको सीक्रेट रखो ना। क्या कॉपरेट करने की जरूरत है, कॉपरेट तो उस चीज का होता है जो पब्लिक में जाने वाली हो, जो जल्दी से चुराई जा सके। ट्रेड सीक्रेट रखो, उसको किसी को बताओ मत। हाँ, अगर कोई सीक्रेट चुरा रहा है आपका तो फिर अलग बात है, वो एक अलग डोमेन हो जाता है। ट्रेड सीक्रेट एक अलग ही आईपीआर का डोमेन। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, नो, यू कैनॉट प्रोटेक्ट योर बिजनेस आइडिया अंडर कॉपीराइट एक्ट। पहली बात तो यही है कि कॉपीराइट जो है आइडिया का हो ही नहीं सकता, और बिजनेस इज डिफरेंट। दूसरा सवाल इन्होंने ये पूछा है कि व्हाट हैपेंस इफ द ऑथर डाइज विदाउट एनी नोन एयर्स। 60 साल तक उसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार या प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है, या कोई उसका लॉयर था, कोई तो होगा, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो होगा भाई, कोई लॉयर तो होगा। उसने अगर एकदम से आकस्मिक ही मर गया है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन कोई एक्सट्रीम सिचुएशन है कि बिल्कुल आकस्मिक कोई इंसान मर गया और उसका कोई जान पहचानने वाला नहीं, ना कोई बेटा ना कुछ नहीं है उसका, ऐसी एक एक्सट्रीम सिचुएशन अगर आ जाती है, अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है, तो वो जो वर्क है वो 60 साल तक तो अगर कोई उसको डिफेंड कर सकता है तो कर सकता है, क्योंकि 60 साल तक लॉ तो उसके साथ है ना भाई। एयर नहीं है लेकिन लॉ तो उसके साथ है। अदरवाइज अगर कोई नहीं है तो फिर जब कोई एक्शन लेने वाला है ही नहीं तो फिर पब्लिक डोमेन में चला गया। जब कोई आपको बोलने वाला ही नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट शाहबाज, कि अगर कोई है ही नहीं तो फिर बोलेगा कौन। राइट। तो वो वर्क पब्लिक डोमेन में चला जाएगा। इट्स अ कॉपीराइट जो है वो बेसिकली हमारे अंदर जो इनोवेटिव आइडिया होते हैं जिन्हें हम एक्सप्रेस कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब इससे क्या कि जो हमारे अंदर जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जो बहुत अच्छे आइडिया होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। और आपने जो भी चीज़ बताई कॉपीराइट से रिलेटेड, बहुत ही मतलब मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ें। और चलिए सर, अब टाइम भी एंड हो रहा है और क्वेश्चंस भी नहीं है किसी के। और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आज इस सेशन में ना डीन है ना एचओडी है। अरे मैम, निलेश से तो मैं बात कर लूंगा अलग से, कोई जी दिक्कत जी, नहीं मेरी नहीं। ये जस्ट मैसेज था, आपसे स्टूडेंट से जस्ट इंटरेक्ट करना, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना, नॉलेज नॉलेज को स्प्रेड करना, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने जैसा कहा अभी इसके पहले कि काश ऐसा कॉपीराइट होता कि हम आपको इस तरह बार बार सुनते रहते, बट नॉलेज कुछ लोगों के लिए नहीं होता, जितना बढ़ाओ उतना बढ़ता है। तो हमारी तो मतलब यही कामना है कि आपका ये जो नॉलेज है और स्टूडेंट्स जो हैं उन तक जाता रहे और बिल्कुल सभी को मिलता रहे। नीलेश सर से मेरी थोड़े टाइम पहले अभी बात हुई, उनका व्हाट्सअप आया मेरे पास, तो उन्होंने कुछ आपके लिए कहा है। वेल, वोट ऑफ थैंक्स में वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक्स यू फॉर accepting our invitation. We are looking forward to work with you in our future events. Thank you for such a wonderful session. It was, let me say this, one of the most terrific session we all have attended. थैंक यू सो मच सर, आपका सेशन बहुत अच्छा था। और डीन नीलेश सर और एचओडी मैम नाइश मैम की तरफ से थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच मैम। आई होप कि फ्यूचर में भी मुझे ऐसे ही मौका मिले। बिल्कुल और सर, हम जब बिल्कुल। बच्चे आप लोग के सीनियर हो जाएंगे, जब आईपीआर एक्चुअली में पढ़ेंगे, तब और अच्छे से डिस्कशन हो पाएगा, यस और डीपली जाके डिस्कशन हो यस यस, आई एम बिल्कुल एज अ आईपीआर एक्सपर्ट हम चाहते हैं कि आप
इस तरह के लेक्चर्स हम आपके साथ कंटिन्यू करते रहें फ्यूचर में। जी जी, थैंक यू वंस थैंक अगेन। यू सो मच थैंक यू। मैम।